morning, kids. Welcome to the fifth lesson of your OCM, which is Forms of Business Organization. आइए देखते हैं कि फिफ्थ लेसन में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या हो जाते हैं आपके. चलिए स्टार्ट करते हैं. नाउ वी कैन से in India there is a coexistence of private and public sectors. Over here private and over here public. Okay guys, I will take example of India. So in India there is a coexistence of both the parties, yeah, we can say both the companies, private and public. Means what? Ki some public companies are there and some private companies are there. If we take example of public companies, so public, the main motto, yeah, the main target of public companies is just to render services. Whereas on the other hand side, if we take example of private companies, the main aim, yeah, the main target of these type of companies is just to earn maximization of profit. Whatever services, even they are rendering services, but whatever services they are rendering, yeah, they are providing, on it, they, we can say the main aim, yeah, the main target of them is just to earn maximum amount of profit. So exactly what is private sector and what is public sector? Let's have a look toward it. Now guys, if we'll take example of, yeah, if we'll talk about private sectors, so private sectors are owned and managed by individuals. Okay, again I'm repeating, private sectors are owned and managed by individual, whereas public sectors, yeah, we can say over here sector and sector. On the other hand side guys, we can say public sector is a sector which is owned, managed by गवर्नमेंट. यस गाइस, अगर हम लोग प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जिसको पूरी तरह से वी कैन से ओन करना, मैनेज करना, उसका ओनर या उसकी पूरी जिम्मेदारी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास होती है. वो बंदा अपनी मर्जी से रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा के अपनी कंपनी को ऑपरेट कर सकता है. दूसरी ओर अगर मैं बात करती हूँ पब्लिक सेक्टर्स की, तो पब्लिक सेक्टर्स में हो जाता है बच्चों कि एक ऐसी पर्टिकुलर कंपनी के जिसको वी कैन से ओन, मैनेज, या उस पर्टिकुलर कंपनी को हैंडल कौन करता है? उसे हैंडल करती है गवर्नमेंट. आइए देखते हैं इसके बाद में कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनीज में और क्या हो जाता है. अगर मैं बात करती हूँ प्राइवेट कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनीज का मेन एम होता है बच्चों, जिसे मैं बोल दूंगी एम, इनका एम होता है now the main aim of private sectors are just to maximize, we can say profit, maximum amount of profit, yeah, we can say just to earn maximum amount of profit is the main aim, yeah, the main target of private sector companies. Means whatever services they are providing, yeah, they are rendering to you, in return, yeah, in exchange, they just want to earn maximum amount of profit. Whereas on the other hand side, public sector, the aim of these type of services, या sectors is just to render services, है ना. The main aim, the main target of public sector organizations is just to render services. प्राइवेट क्या करते हैं? सर्विसेज ही देते हैं पर बदले में पैसा चार्ज करते हैं. पब्लिक सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इनका मेन टारगेट पैसे अर्न करना नहीं होता है, लोगों की मदद करना या लोगों की हेल्प करना. चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर एंड व्हाट इज पब्लिक सेक्टर. चलिए एक ले लेते हैं पर्टिकुलर, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. यहाँ पे हम लोग लग्जरी बस, और यहाँ पे हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं एसटी बस. नाउ अगर हम लोग बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की, प्राइवेट सेक्टर हमें प्रोवाइड करेगा लग्जरी बस. लग्जरी बस अगर हमें एक प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है, उस पर्टिकुलर लग्जरी बस में आपको हो सकती है एसी, टेलीविजन, प्लस वी कैन से बैठने के लिए कंफर्टेबल सीट्स, और वी कैन से कर्टन्स रहेंगे, या बहुत सारी फैसिलिटीज उसमें रहेगी, लाइट्स रहेगी, ये रहेगा वो रहेगा.
म्यूजिक सिस्टम रहेगा, एवरीथिंग। अब ये सारी फैसिलिटी जो आपको प्राइवेट सेक्टर्स प्रोवाइड कर रही है ना, आपके लिए बस है, एसी है, टीवी है, वॉशिंग आई एम सॉरी एसी है, टीवी है, म्यूजिक सिस्टम है, जो भी चीज़ें हैं, इन सभी के लिए प्राइवेट सेक्टर वाला आपसे चार्जेस लेगा। यहाँ पे उसका मेन टारगेट क्या है, मेन एम क्या है बच्चों, कि जो भी म्यूजिक सिस्टम उसने उसकी पर्टिकुलर लग्जरी में फिट किया है, उस म्यूजिक सिस्टम को फिट करने के लिए जितने भी चार्जेस उस बंदे ने पे किए हैं, वो सारे चार्जेस वो आप लोगों से वसूलेगा। जो भी म्यूजिक सिस्टम है उसके सॉन्ग्स आपको सुना के या वॉट इसी तरह से वो अपनी लग्जरी बस का पूरा खर्च आप लोगों से निकाल लेगा। आइए मूव ऑन करते हैं एसटी बस की तरफ। एसटी बस के अंदर ना आपको म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, सीट्स ओके ओके रहेंगे, ऐसे भी नहीं कि एसी होगी, ओके ओके सीट्स रहेगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं इस टाइप की एसटी बसेस की, ये पर्टिकुलर बसेस आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि रेंडर सर्विसेज, इस बस का मेन टारगेट है आपको सर्विस मिल जाए। किस प्रकार की सर्विस, जैसे मैंने यहाँ पे दोनों में एग्जांपल लिए बच्चों, लग्जरी बस और एसटी बस। अब अगर मैं बात करती हूँ बस की, चलिए ये है नासिक, नासिक से मुझे जाना है पुणे, ओके, फ्रॉम नासिक टू पुणे, मुझे नासिक से पुणे जाना है। नासिक से पुणे जाने के लिए यहाँ पे मेरी मेन ज़रूरत क्या है कि मुझे एक पर्टिकुलर व्हीकल मिल जाए, एक पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट मिल जाए, जिसकी वजह से मैं नासिक से पुणे इजीली ट्रैवल कर पाऊँ। उसके लिए मुझे म्यूज़िक सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, मुझे एसी होना नॉट नेसेसरी। उसके लिए मुझे वीकेंड से टीवी चाहिए, कर्टन्स चाहिए, लाइट चाहिए, फैन चाहिए, कूलर चाहिए, इन सभी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। द थिंग इज़ दैट मुझे नासिक से पुणे जाना है तो मुझे एक पर्टिकुलर सूटेबल और कन्वीनियंट गाड़ी चाहिए या व्हीकल चाहिए कि जिसकी वजह से मैं यहाँ से यहाँ इजीली पहुँच पाऊँ। अब अगर मैं बात करती हूँ लग्जरी बसेस की, लग्जरी बस नासिक से पुणे जाने के लिए आपसे वसूलती है 350 रुपीज़। कितना? 350 रुपीज़। वही अगर मैं बात करती हूँ एसटी बसेस की, एसटी बसेस आपसे ले लेगी 150 रुपीज़। सी द डिफरेंस गाइस, कि सेम उतना ही है। ये पर्टिकुलर बस भी आपको पुणे पहुंचा रही है, ये भी बस आपको पुणे पहुंचा रही है, बट अगर हम लोग डिफरेंस की बात करते हैं, यहाँ के चार्जेस है 350, वहाँ के चार्जेस है 150। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल या ओवरऑल डिफरेंस की बात करूँ तो हमारे प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस या प्राइवेट सेक्टर्स मुझसे 200 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। नाउ एज आई टोल्ड यू दैट the aim of private sector, yeah, the target of private sector organization is just to earn maximum amount of profit. Means it's okay कि they are providing luxurious facilities to you, yeah, they are giving n number of facilities to you, but in return they are not giving, yeah, they are not providing the same facilities to you free of cost. Whatever facilities they are providing, yeah, they are rendering to you, in return they are charging 350 रुपीज पर हेड। एक एक पर्टिकुलर बंदे से वो 350 रुपीज चार्ज करते हैं, विच इज टू मच। वही हम लोग अगर नॉर्मल एसटी बस की बात करते हैं तो वहाँ पे ठीक है कि टेप नहीं है, एसी नहीं है, कर्टन्स नहीं है, टीवी नहीं है, बट द थिंग इज दैट वाइल ट्रैवलिंग नो नीड टू हैव ऑल दीज थिंग्स। ट्रैवलिंग के वक्त ये सारी चीज़ें ना भी हो तो इट्स ओके, मतलब हम लोग ट्रैवल कर पाते हैं। पर अगर हम लोग लग्जरी बस की बात करते हैं या प्राइवेट सेक्टर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे वो पर हेड 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले रहे हैं, जिसमें अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूँ एसटी बस का फेयर चार्ज 150 है, इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो 150 में एक बंदा और पुणे चला जाएगा, प्लस 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा बच रहे हैं। आ रहा है समझ में? अगर एसटी बस की बात करती हूँ तो जितना टिकट इस पर्टिकुलर बस का है उसके अंदर 2 लोग पुणे चले जाएंगे, प्लस 50 रुपीज़ उनके पास में एक्स्ट्रा बैलेंस बच जाता है। तो ये पर्टिकुलर डिफरेंस होता है प्राइवेट सेक्टर्स में और पब्लिक सेक्टर्स में। आइए इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। आई होप द सेम कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये पर्टिकुलर टॉपिक समझ में आया रहेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बच्चों पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस की। पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस की। नाउ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो भी होते हैं बच्चों, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब वो कैटेगरीज क्या क्या है आइए देख लेते हैं।
The first one is departmental organization. The second one is statutory corporation. And the third one is government company. Okay, now first we'll discuss about public sector organization. As we've already discussed, guys, कि public sector organization means a organization, the main aim, we can say a organization which is running with the aim, yeah, with the target of just to rendering services to others, yeah, just to help others, just to support others by providing n number of facilities and n number of services to them by charging lowest cost. Now let's have a look toward it, guys. The public sector organization is broadly classified into three main categories. Out of it, the first one is departmental organizations. Now over here the things are placed according to department, yeah, as per department wise the things are placed. Next, statutory corporation, and the third one is government company. So we'll discuss the same one by one ki exactly what is departmental organization, what is statutory corporation, and what is government company. So first we'll talk about departmental organization कि exactly what is departmental organization. चलिए स्टार्ट करते हैं अभी सबसे पहला वाला कि डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में क्या है. नाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज ओन्ड, मैनेज्ड, controlled and financed by the government is known as departmental organization. अगर मैं बात करती हूँ departmental organization की, so the same is owned, managed and controlled by government. One more thing, financed. चलिए, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसको फाइनेंस, जिसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल, ब्लड ऑफ पर्टिकुलर बिजनेस, उसे पैसा, कैपिटल बोल दीजिए, उसे चलाएगा, उसे मैनेज करेगा, उसे कंट्रोल करेगा. कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी. उस टाइप के पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को हम लोग बोल देंगे डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. चलिए, नाउ इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म्स ऑल इट्स एक्टिविटीज एज एन इंटीग्रल पार्ट फॉर गवर्नमेंट ओनली. ये अगर मैं बात करूं तो ये सबसे ओल्डेस्ट टाइप या ओल्डेस्ट मेथड है काम करने का. ठीक है, अगर हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो ये सबसे पुराना फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वाइज काम किया जाता है. और ये पर्टिकुलर चीज के अंदर पैसा बोलिए, उसको मैनेज और कंट्रोल करना कौन करता है? गवर्नमेंट करती है. नाउ गाइस, आइए लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड सम फीचर्स ऑफ इट. नाउ लेट्स डिस्कस, we can say, some features of, let's discuss some features of departmental organization. The first one is managed by government. चलिए इसका सबसे पहला फीचर देख लेते हैं कि मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट. बट ऑफ कोर्स एज गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग finance, government is managing the day-to-day operations, government is controlling that particular organization, that's why the particular thing is managed by government. अगर मैं we can say departmental organization की बात कर रही हूँ, उसे कैपिटल गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है, उसे हैंडल गवर्नमेंट कर रही है, तो बट ऑफ कोर्स उसे मैनेज या उसे कंट्रोल भी गवर्नमेंट ही करती है. इसलिए उसका पहला फीचर बन जाता है कि वी कैन से मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट. आइए दूसरा वाला देखते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. चलिए दूसरा देखते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. The downward delegation of authority is affected from top executives to every part of the organization. Now guys, delegation is a process of, we can say, transferring, yeah, we can say giving jobs to subordinates, या नीचे के लोगों को काम देना. डेलीगेशन के अंदर क्या होता है
कि पर्टिकुलर जो भी वर्क है उसे डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि जो भी टॉप लेवल होती है बच्चों, टॉप लेवल वर्क्स को डिवाइड कर देती है सबऑर्डिनेट्स में, जिसे हम लोग लो लेवल या मिडिल लेवल बोल देते हैं। ठीक है, जितनी भी हमारी टॉप लेवल होती है, जितने भी मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव, सीनियर सुपरवाइजर्स एंड ऑल, वो सारे क्या करते हैं, अपने काम नीचे के लोगों को बांट देते हैं। जैसे कि वर्कर्स है, वर्कर का हेड है, सुपरवाइजर्स है, या और भी जो भी चीज़ें, उन लोगों में वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है। ये बन जाएगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, उसका सेकंड फीचर। आइए थर्ड वाला फीचर देखते हैं, फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट। चलिए, अब अगर मैं बात करती हूँ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की, तो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज फाइनेंस्ड थ्रू एनुअल बजट एप्रोप्रिएशंस मेड बाय the legislature, and its revenues are directly paid to the government excuse me, treasury, financed by government. Yes guys, now whatever taxes government is collecting from general public, on the basis of that government is planning a budget for annual year, या अगले आने वाले साल के लिए गवर्नमेंट बजट प्लान कर लेती है। अगर मैं बात करती हूँ फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट, तो वो जो टैक्सेस कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, उन्हीं टैक्सेस से गवर्नमेंट क्या करती है बच्चों, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को रन करती है, या जो भी पैसों की उसकी ज़रूरत होती है उसे इन पैसों से फुलफिल करती है, कंप्लीट करती है। आइए फोर्थ वाला पॉइंट चेकआउट करते हैं, रन बाय गवर्नमेंट। अगला फीचर बन जाता है इसका कि रन बाय गवर्नमेंट। यस गाइस, अगर मैं डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की बात करती हूँ, तो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को पैसे गवर्नमेंट सप्लाई करती है, उसको चलाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, उसको मैनेज बोलिए, कंट्रोल बोलिए, हर एक चीज गवर्नमेंट के अंडर में आती है। अब उसे अगर मैं चलाने की बात करती हूँ, सो यूजुअली गवर्नमेंट कंपनीज आर रनिंग देयर पर्टिकुलर कंपनीज with the aim या with the motto not to earn profit but just to render services to general public। यहाँ पे क्या होता है कि इनके डिफरेंट डिफरेंट बजट अकाउंट्स होते हैं, प्रोसीजर्स होती है, उसके बेसिस पे वो पर्टिकुलर कंपनी को चलाते हैं या उसे रन करते हैं। आइए अगला देखते हैं, नो सेपरेट लीगल स्टेटस। आइए अगर मैं बात करती हूँ इस टाइप के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की या गवर्नमेंट कंपनीज की, कि उनका कोई लीगल अस्तित्व होता है कि नहीं, या उनका कोई वजूद होता है कि नहीं, तो वही है नो सेपरेट लीगल एंटिटी या नो सेपरेट लीगल स्टेटस। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट, इट्स वर्किंग अंडर कंसर्न्ड मिनिस्ट्री। अगर मैं बात करती हूँ इस टाइप के डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की, तो इनका कोई लीगली रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, लॉफुल रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। ये पर्टिकुलर चीजें एक कंसर्न्ड, ये सारी चीजें एक पर्टिकुलर कंसर्न्ड मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है, इसलिए इनका जो भी रहेगा झमेला या जो भी वर्क प्रोसीजर रहेगा वो इस मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा, मतलब इनका खुद से कोई एक लीगल अस्तित्व नहीं होता है। एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। चलिए लास्ट वाला पॉइंट देख लेते हैं। लास्ट वाला पॉइंट इसका बन जाता है बच्चों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में क्या होता है, सिंस इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, द स्टाफ ऑफ द एंटरप्राइज इज रिलेटेड or is treated equally with other civil servants for all purpose with other government employees। अगर हम इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने बताया कि इसे हैंडल, मैनेज, कंट्रोल या इसे फाइनेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो इसके जितने भी एम्प्लॉयज भी होंगे उनको जो भी पीएफ देना है, उनको सैलरीज देनी है, उन्हें बोनस देना है, उन्हें पेंशन प्लान देनी है नहीं देनी है, ये सारा झमेला भी कौन फाइनलाइज करता है, गवर्नमेंट फाइनलाइज करती है। तो फ्रॉम माय साइड दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ टुडे वी हैव डिस्कस्ड द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टू फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर, फर्स्ट वन इज प्राइवेट एंड अनदर वन इज पब्लिक। प्राइवेट के अंदर हमने देखा कि ऐसी कंपनीज जो वी कैन से ज्यादा पैसे कमाने के लिए लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसमें हमने लग्जरी बस का एग्जाम्पल देख लिया। दूसरी तरफ हमने बात की एसटी बस की, जो कि यूजुअली गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाती है, उसमें भी फैसिलिटीज होती है, बहुत सारी नहीं होती है बट लिमिटेड होती है,
और उसके चार्जेस भी कम होते हैं। अब चार्जेस क्यों कम होते हैं, एज आई टोल्ड यू कि लग्जरी बस चार्ज करती है नासिक से पूना 350, वेयर एज ऑन द अदर हैंड साइड वी कैन से एसटी बस चार्ज करती है 150। तो एसटी बस का मेन मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, उसका मेन टारगेट ये है कि जितने भी गरीब लोग हैं वो कम रेट्स में या वी कैन से कम टिकट के चार्जेस में जहाँ पर भी उन्हें जाना है वो वहाँ पे जा सकते हैं। ओके गाइस, और फिर हमने देखे डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ फीचर्स, जिनमें हमने देखा कि डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को ओन मैनेज कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट। इसलिए उसका पहला फीचर आ जाता है मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट, कि इसे पूरी तरह से गवर्नमेंट चलाएगी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जो भी काम रहेगा वो सभी में डिवाइड हो जाएगा, बड़े जो टॉप लेवल के लोग रहेंगे वो छोटों में काम बांट देंगे। नेक्स्ट, फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट, इसको पैसा या कैपिटल कौन देगा, गवर्नमेंट देगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, रन बाय गवर्नमेंट, इस पर्टिकुलर चीज को चलाएगा भी कौन, गवर्नमेंट, क्योंकि सारा सब कुछ गवर्नमेंट ही कर रही है। नेक्स्ट, नो सेपरेट लीगल स्टेटस, इसका कोई सेपरेट लीगल अस्तित्व नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये सारी डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एक कंसर्न मिनिस्ट्री के अंदर आती है और कंसर्न मिनिस्ट्री के द्वारा उनका जो भी रिकॉर्ड हो वो सब कुछ उसी के साथ में होता है, इसलिए अलग से उनका कोई स्टेटस प्रिपेयर करके मतलब नहीं है। लास्ट इज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, यस, अगर ये पर्टिकुलर जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो गवर्नमेंट के अंडर में आता है तो उसमें काम करने वाले लोगों की सैलरीज, उनका एवरीथिंग भी गवर्नमेंट से ही रिलेट करेगा। ओके, थैंक यू सो मच।